Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start lesson number 8, fraction. But before starting our today's topic, first we will see what we had learned our last classes. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. First we will see what we had learned our last classes. So what we had learned our last class? We had learned first half. What is the half? When something is divided into the equally two parts. From the two parts, one part is called half and it is written by 1 by 2 and it is read by 1 by 2. Then next is the quarter. What is the quarter? When something is divided into the equally four parts. From the four parts, we have taken one part. That one part is called a quarter. One part is called a quarter. So this is the one part is the quarter. This is read by 1 by 4. It is read by 1 by 4. It is written by 1 by 4. Then 2/4 and 3/4. 2/4 and 3/4 means when something is divided into the equally four parts, from the four parts we are shaded two parts, means there is fraction is coming 2 by 4. Then 3/4, when something is divided into the equally four parts, from the four parts we are shaded three parts, otherwise we are taken three parts, so this is called 3/4. This is called 3/4. This is written by 3 by 4. Then 1/8. What is the 1/8? When something is divided into the equally 8 parts, from the 8 parts we are shaded one part, so this is called 1/8. When we are shaded two parts, so we are coming 2/8. 3 parts is shaded, so fraction is coming 3 by 8, and 4 parts is shaded, so fraction is coming 4 by 8. Then after we had learned some other fraction. In the other fraction we had learned, now look at this circle. The circle is divided into the equally three parts. From the three parts, one part is shaded, so fraction is coming 1 by 3. Then this circle is divided into the six parts. From the six parts, one part is shaded, so fraction is coming 1 by 6. Then here three circle is divided into the five parts. From the five parts, one part is shaded, so fraction is coming 1 by 5. Two parts shaded, so fraction is coming 2 by 5. Three parts is shaded, so fraction is coming 3 by 5. Then when something is divided into the seven parts, from the seven parts we are shaded one part, so fraction is coming 1 by 7. Two parts shaded, so fraction is coming 2 by 7. Three parts shaded, so fraction is coming 3 by 7. Now look at here. Here is divided into the 9 parts. From the 9 parts we are shaded one part, so fraction is coming 1 by 9. Then two parts is shaded, so fraction is coming 2 by 9. Then after we had learned the numerator and denominator. What is the numerator and what is the denominator? We are writing in numerator how many parts we are shaded from the whole. Now that whole is divided into the 11 parts. Now look at here. Here have some diagram. That diagram is divided into the equally 11 parts. From the 11 parts we are shaded 4 parts. So 4 parts, that shaded parts is called the numerator, and we are divided equally 11 parts. This is called the denominator. So we are writing in the numerator how many parts we are shaded and how many parts we are taken, and in denominator we are write how many parts we are divided into the whole. So this is the numerator and denominator. Then after we had learned the exercise 8.4, 8.5. Then after we had learned the fraction on the given length. Here giving some length A to B. A to B, that length is divided into the equally four parts. From the four parts we are shaded one parts. That one part shaded given the name AC. So
first we are writing in numerator how many parts we are shaded. So how many parts we are shaded? One part is shaded, and that shaded parts given the name AC. So we are writing here AC, and whole parts is the AB. So we are writing denominator AB. So how many parts? One part is shaded, so this is we are writing in the numerator, and 4 parts we are divide, so that 4 parts we are writing in the denominator. So fraction is coming 1/4. Then after we had learned the fraction 1. In this topic we had learned when we are increase the number of denominators, so that number will be small. The denominator increase, the fraction become the small. Suppose we are looking the that 1/10 and 1/10 and 1/8. So from the 1/8 and 1/10, which is the whole is small? 1/10. So when the denominator is increased, so that time number will be small. So we'll say that 1/10 is less than 1/8. 1/10 ये क्या है? छोटा है 1/8 से, क्योंकि जैसे जैसे डिनोमिनेटर का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो नंबर कैसे हो जाता है? स्मॉल होते जाता है. सो दिस इज व्हेन द न्यूमरेटर सेम एंड डिनोमिनेटर इज द चेंज. ये कौन सी कंडीशन में लगता है? जब डिनोमिनेटर चेंज है और न्यूमरेटर सेम है. लेकिन जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है उस समय जो भी बड़ा नंबर है वो ही क्या होता है? ग्रेटर होता है. देखो यहाँ पे एक डायग्राम है. ओके, यहाँ पे देखो इसके 3 पार्ट्स के, इसके भी 3 पार्ट्स की है. इसमें से 1 पार्ट शेडेड है और ये 2 पार्ट शेडेड से. तो 1 और 2 पार्ट्स में से कौन सा बड़ा पार्ट से? 2 पार्ट्स बड़ा है. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/3 इज लेस देन 2/3. 1/3 ये लेस है 2/3 से, क्योंकि ये 2 पार्ट्स कैसे है? बड़े हैं. सो व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, जब क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होता है उस समय जो भी बड़ा नंबर है वही क्या होता है? बड़ा होता है. व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, द ग्रेटर द नंबर ग्रेटर इज फ्रैक्शन. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब क्या होता है? जो भी ग्रेटर नंबर है वही क्या होता है? ग्रेटर होता है. सो दिस कंपैरिजन फ्रैक्शन. देन आफ्टर वी हैड लर्न द फ्रैक्शन ऑफ द कलेक्शन. So in this topic we had learned. Now look at here. Here I have some flowers. How many flowers? 20 flowers. That 20 flowers will divided into the 5 parts. मतलब 20 फ्लावर्स है उसको हमें 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे? 20 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे. 20 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ईच ग्रुप में कितने फ्लावर आ गए? 4 फ्लावर्स आ गए. डिवाइड द कलेक्शन ऑफ 20 फ्लावर इंटू द 5 पार्ट्स. हमें क्या करना है? 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है 20 फ्लावर को. तो हम क्या करेंगे? 20 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे. 20 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ईच ग्रुप में कितने फ्लावर आते हैं? 4 फ्लावर आते हैं. सो 1/5 ऑफ 20 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5. 20 को हमने 5 के साथ डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 4 आ गया. तो ईच ग्रुप में कितने फ्लावर्स आ रहे हैं? 4 फ्लावर्स आ रहे हैं. देन आफ्टर वी हैड लर्न द एडिशन इन द फ्रैक्शन. एडिशन में हम क्या करते हैं? अगर डिनोमिनेटर एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखते हैं और न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसको हम ऐड कर देते हैं. तो ये क्या होता है? एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. देन आफ्टर वी हैड लर्न द सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन. इसमें भी सेम है. एडिशन की तरह हम क्या करते हैं? जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसको 1 टाइम लिख देते हैं और न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा निकलता है सब्ट्रैक्शन. सो दिस वी हैड लर्न अवर लास्ट क्लास. देन आफ्टर वी हैड लर्न लास्ट क्लास स्टोरी सम्स ऑन द फ्रैक्शन. नाउ अवर लेसन इज कंप्लीट. नाउ लुक एट हियर मैथमेटिक्स ए फॉर कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन स्किल. ये आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. मैथमेटिक्स ए फॉर कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन स्किल, दैट पेज नंबर 132. दिस मैथमेटिक्स बी फॉर हायर स्किल, ये आपको क्या है?
वर्कशीट है, मतलब ये आपको क्या करना है, वर्कशीट समझो नहीं तो प्रोजेक्ट समझो। ये आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करना है और फिर आपको उसकी फ़ोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके। मैथमेटिक्स बी फॉर हायर स्किल 132, ये आपको क्या है, वर्कशीट है नहीं तो प्रोजेक्ट, वर्कशीट प्रोजेक्ट दोनों भी समझो। इसको आपको नोटबुक में लिखना है और फिर आपको मुझे सेंड करना है। इवन ये भी फन एक्टिविटी है, ये भी आपको आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है। पूरा जितना भी है पूरा नोटबुक में लिखना है और फिर आपको उसकी फ़ोटो निकाल के मुझे सेंड करनी। 132। Now look at here, mathematics A for concept and calculation skill. So write the fraction for the portion in color. यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए तो हमें उसको फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। Now look at here, here are one square, that square is divided into the how many parts, 1 2 3 4। तो हम डिनोमिनेटर में 4 लिख देंगे क्योंकि इसके कितने पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स किए। अभी कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 1 पार्ट्स को, तो हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, 1 लिख दे। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/4। 1/4 मतलब क्या होता है, क्वार्टर, मतलब इसके 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को शेडेड किया है तो ये क्या आ गया, 1/4 क्वार्टर। नाउ दिस इज सर्कल, लुक एट हियर, हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइडेड इनटू द सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. That circle is divided into the equally 16 parts. कितने पार्ट्स किए सर्कल के, 16 पार्ट किए। हमने डिनोमिनेटर में लिख देंगे, अभी न्यूमरेटर में लिख देंगे कितने पार्ट्स को शेडेड किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 8। सो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया है, 8/16। टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए सर्कल के, 16। 16 में से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, 8 पार्ट्स को शेडेड किया है, तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, 8/16। देन क्वेश्चन नंबर सी, नाउ लुक एट हियर, that rectangle is divided into the how many parts, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिनोमिनेटर में हम 8 लिख देंगे क्योंकि इसके कितने पार्ट्स किए, 8 पार्ट्स के। उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, पूरे 8 पार्ट्स को शेडेड किया है, तो फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा, 8/8। टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए हैं, 8। 8 में से पूरे 8 पार्ट्स को ही शेडेड किया है तो फ्रैक्शन आ गया हमारा 8/8। देन क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में कितने सर्कल है, 1 2 3 4 5 6। डिनोमिनेटर में हम 6 लिख देंगे और उसमें से कितने पार्ट्स को, कितने सर्कल को शेडेड किया है, 2। सो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया है, 2/6। फर्स्ट का आंसर 1/4, सेकंड का 8/16, थर्ड का 8/8 एंड फोर्थ का 2/6। ये हमारा आंसर आ गया। Then question number 2, write the fraction of the numerator equal to 6 and denominator equal to 9। न्यूमरेटर 6 है और डिनोमिनेटर 9 है तो फ्रैक्शन क्या आएगा, 6/9। न्यूमरेटर में 6 लिख दिया, डिनोमिनेटर में 9 लिख दिया, तो फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा, 6/9। नाउ सॉल्व 1/2 ऑफ द 10। 1/2 अदरवाइज इसको हाफ भी बोलते, हाफ ऑफ 10। 10 का हाफ कितना होगा, देखो हम नोटबुक में सॉल्व करके देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं हम। 1/2 ऑफ 10 है तो क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आता है, 5 आता है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5। हम यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आंसर 5। हमारा आंसर कितना आ गया, 5 हो गया। 10 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। देन
1 डिवाइडेड बाय 7 ऑफ 21, 21 का 21 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो आंसर कितना आएगा? 7 के टेबल में 21 कौन से प्लेस पे आता है? 3। तो आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। इसको हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो कि हम यहाँ पे एक लाइन कर देंगे, हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इसका आंसर 5 आता है और इसका आंसर 3 आता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला 1/2 ऑफ 10 है, तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और इसका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये ए का आंसर है। ठीक है, और बी का कैसे लिखेंगे, 1/7 ऑफ 21 है, तो हम क्या करेंगे, 21 को 7 के साथ डिवाइड करें, तो आंसर कितना आ गया? 3। तो यहाँ इसका आंसर 5 आ गया और इसका आंसर 3 आ गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फ्रैक्शन filling the symbol, this is the less than or greater than in the box। देखो हमें साइन लगाना है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? 12 है। उस समय जो भी बड़ा नंबर है वही नंबर क्या आता है? बड़ा नंबर आता है। सो 4 और 3 में से बड़ा क्या है? 4 है। तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा? यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा? ग्रेटर देन का। 4 डिवाइडेड बाय 12 ग्रेटर देन 3 डिवाइडेड बाय 12। 4 डिवाइडेड बाय 12 ये 3 डिवाइडेड बाय 12 से बड़ा है। 10 डिवाइडेड बाय 11 9 डिवाइडेड बाय 11। 10 डिवाइडेड बाय 11 और 9 डिवाइडेड बाय 11 में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जो भी बड़ा नंबर है उसको ही साइन आएगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 11 ग्रेटर देन 9 डिवाइडेड बाय 11। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिगेस्ट। सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो उस समय जो भी स्मॉल नंबर है वही स्मॉल आएगा। तो सबसे छोटा क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 10। देन उसके बाद क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाय 10। और उसके बाद क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 10। सो 3 डिवाइडेड बाय 10, 4 डिवाइडेड बाय 10, 5 डिवाइडेड बाय 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 10 हमारा आंसर आ गया। राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉल। सबसे बड़ा क्या है? सबका डिनोमिनेटर 80 है, तो सबसे बड़ा जो भी होगा सबसे पहले आएगा। सो सबसे बड़ा क्या है? 3, 8, 6 और 7 में से सबसे बड़ा 8 है, तो सबसे पहले क्या आएगा? 8 डिवाइडेड बाय 8। देन उसके बाद क्या आएगा? 7 डिवाइडेड बाय 8। उसके बाद आएगा 6 डिवाइडेड बाय 8 और उसके बाद आएगा 3 डिवाइडेड बाय 8। सो आंसर क्या आ गया? 8 डिवाइडेड बाय 8, 7 डिवाइडेड बाय 8, 6 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय 8 हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एडिशन करना है। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे? 7 लिख देंगे डिनोमिनेटर में और जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा? 2 + 3 5। 5 डिवाइडेड बाय 7 हमारा आंसर आ गया। 2 और 3 को हमने ऐड कर दिए और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे 3 नंबर्स है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, 10 है, तो हम क्या करेंगे? जो भी न्यूमरेटर में नंबर है उसको ऐड कर देंगे। 3 + 1 + 5, 3 + 1 + 5 कितना होगा? 3 + 1 4, 4 + 5 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 10। कितना आ गया आंसर? 9 डिवाइडेड बाय 10। नाउ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम मेथड है, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर कितना है? 11 है, तो हम क्या करेंगे? 8 में से 5 को माइनस करेंगे। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आता है? 3 डिवाइडेड बाय 11। आंसर कितना आ गया हमारा? 3 डिवाइडेड बाय 11। यहाँ पे भी सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर 13 है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे? 13 और न्यूमरेटर में क्या करेंगे? 5 में से 3 को माइनस करेंगे।
5 में से 3 माइनस किया तो कितना आता है 2 डिवाइडेड बाय 13। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 13। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। बीना हैड 12 डिवाइडेड बाय 13 ऑफ चॉकलेट। बीना के पास चॉकलेट है, 13 में से 12 चॉकलेट उसके पास है। शी गेव 2 डिवाइडेड बाय 13 ऑफ चॉकलेट टू हर लिटल सिस्टर। उसकी लिटल सिस्टर है, उसको उसने कितना चॉकलेट दिया है 2 डिवाइडेड बाय 13, मतलब 13 पार्ट्स में से 2 चॉकलेट उसको दिए हैं। 3 डिवाइडेड बाय 32 लिटल ब्रदर्स, और उसका छोटा भाई है, उसको कितने दिए 13 में से 3 दिए। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। हाउ मच ऑफ चॉकलेट डिड बीना गिव अवे। उन दोनों को कितनी चॉकलेट दी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमें निकलेगा कि उसने उनको कितना चॉकलेट दिया है। तो क्या करेंगे हम 2 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 13, ये ए का आंसर है। ओके, 2 डिवाइडेड बाय 13 और 3 डिवाइडेड बाय 13 क्या आता है 5 डिवाइडेड बाय 13। तो उसने उसके दोनों भाई बहन को मिला को कितने चॉकलेट दिया है 5 डिवाइडेड बाय 13। कितना चॉकलेट दिया है 5 डिवाइडेड बाय 13, उन दोनों को चॉकलेट दिया है, ठीक है। हाउ मच चॉकलेट लेफ्ट विथ हर। अभी उसके पास कितने चॉकलेट बचे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पास कितने चॉकलेट है 12 डिवाइडेड बाय 13 है, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाय 13, क्योंकि ये दोनों को कितना चॉकलेट दिया है 5 डिवाइडेड बाय 13। तो बी का क्या करेंगे हम 12 डिवाइडेड बाय 13 में से माइनस करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 13। 12 डिवाइडेड बाय 13 में से 5 डिवाइडेड बाय 13 माइनस करेंगे तो कितना होता है 12 में से 5 चॉकलेट उसके चले गए, तो उसके पास कितने बच गए 12 में से 5 चॉकलेट उसने दे दिए, तो उसके पास कितने बच गए 7 प्लस उसके पास चॉकलेट कितने बच गए 7 डिवाइडेड बाय 30, तो उसके पास कितने चॉकलेट बच गए 7 में से 13। ओके, नाउ हु गॉट मोर चॉकलेट हर सिस्टर और ब्रदर। किसको ज़्यादा चॉकलेट मिल गए, किसको ज़्यादा चॉकलेट मिल गए, किसको मिल गए उसके सिस्टर और ब्रदर सिस्टर को कितने मिल गए 2 डिवाइडेड बाय 13 और ब्रदर को कितने मिल गए 3 डिवाइडेड बाय 13। तो किसको ज़्यादा चॉकलेट मिल गई उसके ब्रदर्स को, तो इसका आंसर क्या आएगा ब्रदर। किसको ज़्यादा चॉकलेट मिल गए ब्रदर्स को। हाउ मच मोर, उसको कितने ज़्यादा मिल गए चॉकलेट, कितने मिल गए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 3 डिवाइडेड बाय 13 है उसमें से 2 डिवाइडेड बाय 13 को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि उसको कितने चॉकलेट, मतलब उसकी जो ब्रदर्स है उसको उसके सिस्टर से कितने ज़्यादा चॉकलेट मिले। हम क्या करेंगे फिर 3 डिवाइडेड बाय 13 में से माइनस करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 13 को, तो कितना आएगा 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 13। तो उसको कितना चॉकलेट एक्स्ट्रा मिल गया है 1 चॉकलेट एक्स्ट्रा मिल गया, तो इसका आंसर कितना आता है 1 डिवाइडेड बाय 13। इसका आंसर कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 13। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, दोनों को कितने चॉकलेट मिले हैं उसको ऐड करके उसका आंसर किया है। फिर सेकंड में उसके सिस्टर मतलब जिसने बीना को कितने चॉकलेट उसके पास लेफ्ट हो गए, तो उसके लिए हमने सब्ट्रैक्शन किया है। फिर क्वेश्चन नंबर सी में था कि किसको ज़्यादा चॉकलेट मिले, सिस्टर और ब्रदर, तो किसको मिल गए ब्रदर्स को मिल गए। एंड कितने ज़्यादा मिल गए, ब्रदर्स को ज़्यादा मिल गए तो कितने ज़्यादा मिल गए, तो उसके लिए हमने क्या किया है सब्ट्रैक्शन किया है। तो इसका आंसर कितना आता है 1 डिवाइडेड बाय 13। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट फ्रैक्शन इज 3 आउट ऑफ 5 पार्ट्स। क्या फ्रैक्शन होगा 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स का। कितने पार्ट्स किए हैं
5 पार्ट्स के, उसमें से 3 पार्ट्स लिए है, तो कितना फ्रैक्शन आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। कितने पार्ट्स है 5 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट्स को हमने आउट किया है, तो कितना बन गया है 3 डिवाइडेड बाय 5। व्हाट इज हाफ ऑफ 10? 10 का हाफ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हाफ को कैसे लिखते हैं 1/2 ऑफ 10। सो 1/2 का हाफ कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। 10 का हाफ कितना होता है 5 होता है, हाफ मतलब हाफ को हम 1/2 लिखते हैं, 1/2 ऑफ 10, 10 का हाफ 10 डिवाइडेड बाय 2, हाफ कितना हो गया 5। I eat 2 parts of cakes which is equally divided into the 8. What is the fraction cake did I eat? केक के कितने पार्ट्स किए हैं बोल रहे हैं 8 पार्ट्स किए हैं, उसमें से 2 पार्ट्स मैंने खा लिए हैं, ईट किए, तो क्या फ्रैक्शन हो गया, तो क्या फ्रैक्शन आएगा, कितने पार्ट्स किए 8, उसमें से 2 पार्ट्स को हमने खा लिया, तो फ्रैक्शन क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 8। फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा 2 डिवाइडेड बाय 8। टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है 8 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट्स को खा लिए, तो फ्रैक्शन आ गया 2 डिवाइडेड बाय 8। नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर ई, 3 डिवाइडेड बाय 7 ऑफ शेप इज कलर, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन इज नॉट कलर। क्या बोल रहे हैं 7 पार्ट्स के, यहाँ पे हम डायग्राम निकालेंगे, ठीक है, उसके हम 7 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके हमने 7 पार्ट कर दिए, ठीक है। 7 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को शेडेड किया है, कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 3 पार्ट्स को शेडेड किया है। सो कितने पार्ट्स को शेडेड नहीं किया है बोल रहे हैं, सो कितने पार्ट्स को शेडेड नहीं किया है, काउंट करेंगे तो काउंट करो 1 2 3 4। सबसे पहले हम कितने पार्ट्स किए 7, तो डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, और कितने पार्ट्स को शेडेड नहीं किया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 7। फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा 4 डिवाइडेड बाय 7। टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है 7 पार्ट्स है, 7 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को शेडेड किया, तो कितने पार्ट्स को कलर ने किया है 1 2 3 4, सो फ्रैक्शन हमारा आ गया है 4 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज मैथमेटिक्स ए फॉर कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन स्किल। अगेन वन टाइम लुक एट हियर पेज नंबर 132, मैथमेटिक्स बी फॉर हायर स्किल, दिस इज द प्रोजेक्ट फॉर यू। ये आपको क्या है प्रोजेक्ट है, आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करना है, फिर आपको क्या करना है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ओके। एंड दैट मैथमेटिक्स है ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।